Yes, madam, you may start. Okay, ma'am. Good afternoon, all of you. So, आज आपके हमारे मेरे सेशन में आपका वेलकम है। हम लोगों ने कल जो है फर्स्ट एक एप्लीकेशन मेथड के बारे में जाना था, जिसमें आपने वैक्सिंग और बालों को रिमूव करने के कितने तरीके होते हैं, आईब्रो शेपिंग, थ्रेडिंग के बारे में भी जाना था, कैसे मैपिंग की जाती है, शेप को कैसे ज्ञात किया जाता है। आज हम उसका नेक्स्ट मेथड जो सेकेंड टेम्परेरी मेथड होता है वो है डेपिलेशन। तो डेपिलेशन के बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगी। डेपिलेशन के अंतर्गत दो मेथड आते हैं, एक शेविंग और एक आता है डेपिलेटरी क्रीम। ठीक है, तो डेपिलेटरी क्रीम कुछ इस तरह के हेयर रिमूवल क्रीम होती हैं जिसको अप्लाई करके आप टेम्पररी अपने बालों को रिमूव कर सकते हैं। और शेविंग जैसे रेजर्स का यूज किया जाता है ओकेजनली। अगर आपके पास टाइम कम है और आपको बालों को रिमूव करना है तो आप ओकेजनली इस मेथड को भी अपना सकते हैं। तो सबसे पहले एक, और आज के सेशन में हम लोग जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आज के सेशन में हम परमानेंट मेथड के बारे में भी जानेंगे। और परमानेंट मेथड में लेजर मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है और इलेक्ट्रोलाइसिस भी, और दोनों में डिफरेंसेस क्या है उसके बारे में। तो सबसे पहले हम ये जो शॉर्ट मेथड्स हैं उसको हम फिनिश करते हैं। तो फर्स्ट मैं आपको अभी जो वीडियो दिखाने जा रही हूँ वो है हमारा शेविंग के ऊपर। तो क्या So my name is Jyoti Sethi. अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना। Okay, so in this video I'm basically going to shape face. So yeah, अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है ये जानने में that how I shape my face, या फिर आप लोग भी उस सिचुएशन में है जहाँ पे you have a lot of hair and you don't know what to basically do with them and how to basically remove them and you are not really eyebrows have this much growth right now, and my eyebrows have this much growth for now. This is not full growth अभी काफी कम है, but since I shoot videos regularly, I have to keep my face very clean to put on that makeup and all that. So for me, I think it's the right time to shape the face. Okay, now I'll quickly give you a close-up look of my side looks. I know इससे भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है कई लोगों की, but let me show you कि मुझे तकरीबन तकरीबन कितनी ग्रोथ आती है साइड में। I think visible बाल उतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो जो रुआ रुआ होता है वो बहुत ज़्यादा है मेरे फेस पे। People who think that I have flawless face, I have no acne marks or nothing. Let me just give you guys a close-up of how my face looks. You see this? One smooth. So yeah. Now the product that I use is this. I'm sure you guys have seen this product in a lot of other videos because this is the ये है मैनुअल रेजर, इसको मैनुअल रेजर बोलते हैं। In terms of the money you pay for this and a lot of other things which we will talk about. So this is what the product looks like. So safely कहीं पे भी रख सको. Then you remove this, and this is how the razor looks like. Now it is sharp, but it's not like those other blades जो plain वाले blades होते हैं like SNA या अगर touch भी होगा तो आप कट जाओगे, but yes you have to be very careful with this. ये आता है 3 razors के pack में, and razor के साथ आप at least you can shave 20 times depending on the hair growth also, but I definitely use one razor for 20 to 25 times. And how often do I shave? I have to shave the whole face, then only I shave. Otherwise, I only shave maybe my eyebrows or upper lips once in a week, जो कि मुझे process. Now, first thing you have to understand is that you do not have to shave your hair in the opposite direction. Like if your hair are coming in this direction, they're growing in this direction, you do not have to shave them in the upper opposite direction. You have to make your shaver, whatever product you're using, in the same direction of your hair growth. So if my hair are growing in this direction, I have to shave them in this direction instead. Now before
फेस पे अगर रेजर आपने मूव करना है तो रेजर को आप जो है वो जस्ट स्लाइड करते हुए स्किन से और उसके स्किन के पैरेलल आप चलाएंगे। जो मेरे फेस पे बहुत ही छोटे वाले हेयर हैं। Now you can do a full face also, like even if you want to do this portion, you can definitely by maybe stretching skin like this or something like that. But I do not have a lot of hair here, so I do not again do that. Now this side. You have to make sure that you stretch the skin, otherwise cut will be super chances. My sides are done. Now let's quickly move on to the upper lips. Now you have to make sure upper lips को खास तौर पे that you have to stretch them. You just use your tongue. और इसको मूव करते हुए एक तो प्रैक्टिस बहुत चाहिए, दूसरा आपको जब रेजर मूव करना है तो आपकी स्किन को टाइटली स्ट्रेच जरूर रखना है। जहां पे भी आप स्किन लूज छोड़ेंगे वहां पे कट लगने के पूरे चांसेस हो सकते हैं। और रेजर रेगुलर प्रैक्टिस में नहीं आता, रेजर को ओकेजनली जब इमरजेंसी हो, कुछ नहीं है, आप तब यूज कर सकते हैं ओकेजनली। This area. Now let's quickly move on to the eyebrows. Now with the eyebrows, what I do again. आईब्रोज पे आप करते हुए रेजर आपने शेप को फॉलो करना है। ब्लेड का जो फेस है वो शेप के अकॉर्डिंगली मूव करेगा। Just have to keep your razor straight. That's it. जिस भी डायरेक्शन में आपकी आईब्रो है, देखिए अभी ऐसे है तो मैं रेजर को ऐसे रखूंगी एंड सिंपली ऐसे शेप करूंगी। नाउ ये वाली लाइन ऐसे है तो ऐसे रखने की बजाय अब मैं ऐसे रखूंगी और नाउ विद द नीचे वाले बाल अगेन आई कीप द रेजर इन द सेम डायरेक्शन। I do not like to go very close to my eyebrows because razor से you can't be so precise. So what I like to do is that मैं थोड़ा जो extra बाल होते हैं ना बस दूर वाले उतना ही clean करती हूँ razor से। And if I want to go very close then I maybe will use a plucker or maybe I'll just leave them. इन केस अगर आपको स्टिकी लग रहा है स्किन या स्किन पे ऑयल हो तो आप थोड़ा सा पाउडर यूज करके, जैसे हम आईब्रो शेपिंग में करते थे, तो सेम पाउडर यूज करके स्किन को ड्राई कीजिए ताकि स्किन के साथ हेयर चिपके नहीं रहे और रेजर से इजीली रिमूव हो जाए। और ये वाला जो पोर्शन है थोड़ा सा खड़ा रखूंगी ऐसे, ठीक है, ऐसे बजाय ऐसे रखूंगी। और प्रैक्टिस गाइस, प्रैक्टिस ही आप बेटर होते हो। तो किसी भी चीज के लिए आपको प्रैक्टिस से ही आपका हाथ जो है वो साफ होता है।
रेजर से आप एक्स्ट्रा बाल तो इजीली रिमूव कर सकते हो, बट आप प्रॉपरली शेप नहीं दे सकते। शेप देने के लिए आपको इसके साथ ट्विजर का प्रयोग करना पड़ेगा। तो जो एक्स्ट्रा ये बाल रह जाते हैं बिल्कुल साफ शेप को फॉलो करते हुए, इनको आप ट्विजर से निकालिए। जो एक्स्ट्रा बाल दूर दूर तक होते हैं वो आप रेजर से रिमूव कर सकते हैं। मेरी आईब्रोज की शेप जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, इनकी ग्रोथ इससे पहले तो मेरी आईब्रोज का बहुत ही ज्यादा बुरा हाल था, बट इस टाइम मैंने काफी ज्यादा पेशेंस रख के इनमें ग्रोथ की है। तो आई डू नॉट लाइक टू गो वेरी क्लोज। इवन अगर मैं आईब्रोज किसी सैलून में जाकर कराती हूँ तो मैं उनको भी बोल देती हूँ कि एक्स्ट्रा निकालो और बाकी के जो है छोड़ दो। Now for the forehead it's quite simple. See, for a plain canvas, तो यहाँ पे करना जो है काफी आसान होता है और यहाँ पे कट लगने के भी चांसेस कम होते हैं। So what you want to do is you're doing it। रेजर को हमेशा हेयर ग्रोथ के डायरेक्शन में ही फॉलो करना। जिस डायरेक्शन में बाल होंगे उसी डायरेक्शन में आपका रेजर मूव करेगा, उसके ऑपोजिट नहीं। upper lips and then you come to the eyebrows। जब आपका हाथ थोड़ा सा साफ हो जाएगा, आपको एग्जैक्टली थोड़ा सा इसका यूज करना आ जाएगा। That's it, guys. Okay, so you have seen the before. Now this is the after. My face looks better. As in थोड़ा सा स्मूथ हो गया है फेस और थोड़ा क्लियर भी दिख रहा है। So now once I'm done shaving my face ना, उसके बाद जब मैं मेकअप करती हूँ और अपना फाउंडेशन लगाती हूँ और जो भी मेकअप के प्रोडक्ट्स लगाते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा स्मूथली लगते हैं, बिकॉज जो बाल होते हैं वो रात में नहीं आते हैं। So now this is how my face looks like and so अभी आपने मेथड देखा हमारा शेविंग का। इसके बाद नेक्स्ट हम फास्ट एक क्विक मेथड हम लोग देखेंगे डेपिलेटरीज का। तो डेपिलेटरीज में यार हाँ जी। अब हेयर रिमूविंग क्रीम जो भी हम डेपिलेटरीज यूज करते हैं केमिकल यूज करके आप किस तरह से बालों को रिमूव कर सकते हैं, ये शॉर्टकट में फटाफट देखिए। Step 1. Apply the cream. The Big Natural Inspirations hair removal cream comes with a spatula। डेपिलेटरीज के लिए मोस्टली जो भी आप स्पैचुला एप्लीकेशन के लिए यूज करेंगे वो प्लास्टिक का होना चाहिए, मेटल नहीं होना चाहिए। और बालों के सेम डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे आप इसको। 5 से 10 मिनट एप्लीकेशन के बाद वेट कीजिए। टाइम कंप्लीट होने के बाद आप 5 से 10 मिनट कंप्लीट होने के बाद इसको
चेक करते हैं स्पेचुला को कि बाल अगर स्पेचुला से आप क्रीम हटा के देखिए तो अगर बाल इजीली निकल रहे हैं दैट मीन्स के जो बाल रिमूव होना स्टार्ट हो गया। उसके बाद आप पूरे उससे आप बाल निकाल दीजिए। क्रीम रिमूव करने के बाद पैरों को अच्छी तरह से आपने स्किन को क्लीन कर लिया। ओके, थैंक यू। सो अभी हम लोगों का ये वाला भी पूरा हो गया। इसके बाद हम जो मेन टॉपिक पे आएंगे वो हमारा है लेजर। तो लेजर में सबसे पहले क्या करना है, लेजर टेक्निक, लेजर हेयर रिमूवर होता क्या है, पहले तो आप इसके बारे में जानिए। इसमें लेजर रेज होती हैं, जो लेजर रेज जो है बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करती हैं और हमारा जो बाल है वो मेलानिन से है। तो मेलानिन क्या करता है, उस रेज को ऑब्जर्व कर लेता है। ऑब्जर्व करने के बाद ये बहुत ज्यादा हीट देती हैं और उस हीट की वजह से हमारे बालों का जो फॉलिकल है वो पूरा जल जाता है। तो जब हमारा रूट ही जल जाएगा, जड़ ही जल जाएगी किसी की, तो वो वापस से ग्रो कैसे करेगा। तो अब थोड़ा सा और डिटेल पे जाते हैं। चेहरे के अनचाहे बालों को हटाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, जैसे बहुत सारे प्रोसीजर फॉलो किए जाते हैं, जैसे ट्विजिंग, थ्रेडिंग, वैक्सिंग काफी पॉपुलर है, मगर ये बालों को हटाने में टेम्परेरी ट्रीटमेंट है। तो कुछ लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट भी होते हैं, जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस या लेजर। तो लेजर हमारा जो है आजकल, लेजर की अगर हम बात करें तो किसी को भी इसके बारे में पूरी से जानकारी नहीं होती, मिथ ज्यादा है। कभी कोई लोग कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं कि इसको करने से नुकसान होता है, स्किन के ऊपर पैचेस बन जाते हैं, ये स्किन के लिए हार्मफुल है। तो ये सारे मिथ को मैं थोड़ा सा क्लियर करते हुए आपको नॉलेज दूंगी कि सबसे पहले जो है लेजर हेयर रिमूवल एक ऐसा मेथड है जिससे हम हेयर जो अनवांटेड हेयर्स हैं उनके फॉलिकल को आप लेजर राइट की जो पल्स हैं उसकी जो पल्सेस हैं उसकी जो तीव्रता है उसके द्वारा हम उसमें खत्म कर सकते हैं। तो यानी बालों को जड़ से खत्म किया जा सकता है और जो हमें लॉन्ग टाइम रिजल्ट भी देता है। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं लोगों के, तो मैंने कवर करने की कोशिश की है कि किस किस तरह की मिथ होती हैं, लोग किस तरह के क्वेश्चंस करते हैं, इसको लेके क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो सबसे पहले होता है लेजर कराने से पहले क्या कोई टेस्ट होते हैं। तो लेजर कराने से पहले डॉक्टर को वो एरिया आप किसी स्पेशलिस्ट से कराइए, किसी लोकलाइज से नहीं कराइए, अनट्रेंड से तो बिल्कुल नहीं कराना चाहिए। अगर वो डॉक्टर है तो जिस एरिया पे आपने कराना है वो 100% वो पहले चेक करते हैं उस एरिया को कि उस एरिया का स्किन कलर कैसा है, बालों का कलर कैसा है, बालों की थिकनेस कैसी है, क्योंकि जो उसकी लेजर की जो पल्स है, जो फ्रीक्वेंसी है, वो उसको सेट करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू कलर्स के ऊपर और अकॉर्डिंग टू हेयर थिकनेस पे डिपेंड करता है कि आपको जो रेज दे रहे हैं वो कितनी स्ट्रांग होनी चाहिए और कितनी देर तक वो टिकनी चाहिए स्किन पे। ठीक है, तभी वो असर करेगी और बाल को तभी बर्न करेगी। तो एक डॉक्टर जो है वो ये सारी चीजें चेक करता है, तभी वो उसको उसका हीटिंग पल्स लेंथ कितनी होनी चाहिए और पल्स की विड्थ कितनी, मतलब कितने ड्यूरेशन के बाद, एक ही बार में नहीं वो बर्न हो सकता, कितनी ड्यूरेशन के बाद वो पल्स जो है वापस से डालनी पड़ती है स्किन पे। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन जो आता है वो लेजर कराने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो लेजर कराने से पहले लेजर कराने से पहले आप लेजर ट्रीटमेंट लेना है तो पहले तो कोई अच्छा डॉक्टर और अच्छा टेक्नीशियन देखिए, जिसको जो वेल ट्रेन्ड हो
जिसको पूरी लेजर की नॉलेज हो। और लेजर सेशन धूप में करवाने के बाद आप धूप में ज्यादा ना निकलें, क्योंकि सन अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो और हार्म करेंगे आपके स्किन को। और जो भी आपको टेक्नीशियन दे रहा है उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लेजर रेज हीट प्रोड्यूस करती हैं। तो उनको ये ध्यान रखना चाहिए, डॉक्टर या जो भी टेक्नीशियंस हैं उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि लेजर देने से पहले स्किन को अच्छे से ठंडा करें, जिससे आपकी स्किन बर्न नहीं हो। ठीक है, अच्छे से ठंडा, जो कूलिंग इफेक्ट देना होता है वो बहुत अच्छे से दे। लेजर सेशन में होता क्या है, ये एक बार डायग्राम से मैं कुछ समझा रही हूँ आपको कि किस तरह से लेजर जो है वो वर्क करता है। ये हमारा जो है नॉर्मल हेयर है, ठीक है। और जब नॉर्मल हेयर इसके ऊपर लेजर रेज डाली जाती हैं तो वो रेज क्या होती हैं, एक्सपोजर टू पल्स ऑफ लेजर रेज ऐसे गई और वो अंदर जो है पूरे ट्यूब में मेलानिन तक गई। ये फॉलिकल ट्यूब है, ये मेलानिन तक वो लेजर रेज गई और उसके बाद ये पूरी रेज जो है उसको हीट अप करती है। मेलानिन जो है देखो ऐसे उसको ऑब्जर्व कर लेता है। ऑब्जर्व करने के बाद नॉर्मल बाल कैसा था और बाद में ये बाल कैसा फूल गया, इसने रेस जो है वो ऑब्जर्व कर ली। और करने के बाद इसकी जो जड़ है वो पूरी बर्न हो जाती है, जल जाती है। उसके बाद आप इसको निकाल, आप नॉर्मल कपड़े से कॉटन से क्लीन करेंगे तो जैसे जला हुआ बाल एकदम श्रिंक हो जाता है, ऐसे ही पूरा का पूरा ये खत्म हो जाएगा। और उसके बाद ऐसे क्लीन होगा कि बीच में से पूरा बाल खाली और ये फॉलिकल ट्यूब ही रह गई बस, इसके अंदर कोई रूट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, पूरा एंड तक बाल फिनिश। ठीक है, तो नेक्स्ट है कि आपकी स्किन व बाल के हिसाब से लेजर व हीटिंग पल्स तय की जाती है। सबसे पहले टेक्नीशियन आपकी स्किन, जहां पर आपने लेजर, जिस भी जगह पर आपने लेजर कराना है उसको रेडी करता है। उस एरिया को क्लीन करके अच्छे से किसी सैनिटाइजर से आपने स्किन को पहले सैनिटाइज किया, उसके बाद वहां के उसके आसपास के स्किन को आइस पैक या कूलिंग जेल, अच्छे से कूलिंग जेल लगा के उस जगह को ठंडा कर देते हैं। तो ठंडा करने से अगर किसी चीज पे, अगर आप जैसे आप खुद बर्फ के पानी में अपना हाथ डालिए और उसको 10 मिनट तक छोड़ दीजिए तो आपके हाथ सुन हो जाएंगे। और उसके ऊपर एकदम अगर कोई चीज गरम गरम आप अप्लाई करेंगे तो आपको पता भी नहीं लगेगा। सेम टू सेम इसी तरह से इसमें होता है कि अगर आपको लेजर करना है तो लेजर करने से पहले स्किन को क्लीन करते हैं। क्लीन करने के बाद या तो आइस पैक या कूलिंग जेल का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे जो है अगर आप, ताकि गर्म पल्स जो है वो बाहरी स्किन को कोई नुकसान ही नहीं पहुंचाएगी। इसके बाद लेजर कराने वाले एरिया पर जेली लगाई जाती है। और जेली इसलिए, वही जेल होता है, जेल इसलिए लगाते हैं कि लेजर की जो प्रॉब होती है, मतलब जो हैंडल, जो इलेक्ट्रोड है, वो प्रॉब जो है वो इजीली स्किन के ऊपर स्लिप कर सकती है, स्किन रगड़ नहीं खाएगी। और फिर उस एरिया पर लेजर को शूट करते जाते हैं, मतलब वो पल्स को देते जाते हैं। और उसके बाद जब पूरा लेजर क्लीन हो जाता है पूरी जगह पे, उसको अच्छे से वाइप ऑफ करके कोई भी आप स्किन पे इस तरह के ऑइंटमेंट या कोई ऐसी जेल यूज करो जिससे स्किन को वो बहुत ज्यादा ठंडा कर दे, ताकि जो भी गरम गरम लगा था या गरम रेज ने इफेक्ट छोड़ा वो पूरा का पूरा इफेक्ट जो है वो फिनिश हो जाए। बट ध्यान रखिए कि जब आप आफ्टर ट्रीटमेंट, जब आपका क्लाइंट बाहर जा रहा है तो उसको आप बिना सनस्क्रीन के बाहर नहीं भेजेंगे, क्योंकि धूप में एक्सपोजर नहीं करना है लेजर करने के बाद। ठीक है, उसकी और मिथ होती है, क्या इसमें दर्द होता है? ज्यादातर लोग पूछते हैं क्या इसमें दर्द होता है? तो क्योंकि लेजर, इसमें पेन नहीं होता, लेजर जो है वो बहुत हीट वाला ट्रीटमेंट है, हीट वाली रेज है, ये हीट देती हैं। पर कई बार क्या होता है, जलन महसूस जरूर हो सकती है, इसमें पेन नहीं होता, बट स्किन पे, कई लोगों को स्किन पे जलन होती है। पर उस जलन को अगर आप तब खत्म कर सकते हैं जब काफी अच्छी क्वांटिटी में आपने जेल का प्रयोग किया हो, कूलिंग जेल का प्रयोग किया हो। अगर आप अच्छी क्वांटिटी में कूलिंग जेल का इस्तेमाल करते हैं तो वो कूलिंग जेल जो है वो स्किन को सुन कर देगी। उसके बाद कोई पेन महसूस ही नहीं होगा, ना कोई जलन महसूस होगी, दर्द तो होता ही नहीं। नेक्स्ट आता है सेशन में कितना समय लगता है। ये डिपेंड करता है कि आपने कितना एरिया करवाना है। अगर आप अपर लिप करा रहे हो तो उसके अंदर
5 मिनट, मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 मिनट्स लगते हैं। अगर आप चीक्स पे करा रहे हो तो थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, अगर आप अंडर आर्म्स पे करा रहे हो तो डिपेंड करता है एरिया पे कि आपको कितना टाइम लगता है, कितना एक सेशन में कितनी देर लगेगी। उसके बाद नेक्स्ट है लेजर के कितने सेशन जरूरी होते हैं, ये भी डिपेंड करता है आप कितना एरिया करवा रहे हो और सॉरी कितना एरिया आप करवा रहे हो, और बालों का कलर कैसा है, बालों की थिकनेस कैसी है। समटाइम्स क्या होता है कि एक ही सेशन में पूरे के पूरे बाल नहीं निकलते, कई बार होता है कि हमारे बाल जो है टॉलेजन में हम लोग उसको रिमूव, टॉलेजन की जब स्टेज आती है तब हम उसको रिमूव करते हैं, बट वो एनाजन के स्टेज पे क्या होता है बाल जड़ से थोड़ा थोड़ा निकल रहा होता है या निकलने वाला होता है नया बाल, तो हम क्या करते हैं जो टॉलेजन के स्टेज पे उसको निकाल देते हैं, बट हमारी रेस जो है वो रूट्स तक नहीं पहुंच पाती। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है 15 से 20 दिन के बाद जो बाल जड़ के अंदर था वो फिर से ग्रो करना शुरू कर देता है। तो लेजर के सेशन जो है वो उस पर डिपेंड करते हैं, हर 20 दिन में, हर सेशन में समटाइम्स होता है कि एक एक दो दो बालों की ग्रोथ आ जाए। लेजर के बीच में क्या हेयर ग्रोथ होती है? हाँ जी होती है, लेजर जब हम करवाते हैं, इसमें ये डायग्राम में एक चीज मैं और क्लियर करना दिखा रही थी कि इस डायग्राम के क्या होता है स्किन सरफेस के यहाँ से कटता है, बाकी बाल पूरा अंदर फॉलिकल के अंदर है वो सेफ रहता है, बट वैक्सिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है वो आधी जड़ से निकलता है, उसकी नीचे की जड़ पूरी सेफ रहती है, इसलिए उसको ग्रो करने में ऐसे एपिलेटरी जो है वो इसी का पार्ट है, तो करो या तो उसमें क्या होता है बिल्कुल सेफ है, उनकी रूट्स बिल्कुल सेफ है, इसलिए बाल जो है वो ग्रो करने में एटलीस्ट उसको ये स्किन सरफेस से है तो ये 1-2 दिन में बड़ा होकर बाहर आ जाता है, ये आधे आधे निकलते हैं पूरी जड़ नहीं निकलती है, तो इसमें क्या होता है कि ये इसको ग्रो करने में एटलीस्ट 15 से 20 दिन लग जाते हैं दोनों को। और इस वाले ट्रीटमेंट जब आप लेजर ले रहे हो, आप परमानेंट ले रहे हो, तो इनको ग्रो करने में क्योंकि इनकी रूट्स ही बर्न हो जाती हैं, जड़ ही खत्म हो जाएगी, तो ये ग्रो करेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर है हाँ जी। इस सेशन के बीच में जब आप ट्रीटमेंट ले रहे हो तो बीच बीच में हेयर ग्रोथ होती रहती है, पूरी तरह से फिनिश नहीं होती। आप उन बालों को, जो भी बाल ग्रो कर रहे हैं, आप उन बालों को वैक्स भी करवा सकते हैं, आप उन बालों को शेव भी कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि अपने लेजर सेशन और वैक्सिंग सेशन में कम से कम 12 दिन का गैप होना चाहिए। अगर आपने लेजर सेशन दिया है और आपने 10 दिन के अंदर वापस से उसी जगह पे एक दो बाल आ गए, तो आप वहां पे दोबारा से, क्योंकि लेजर सेक्शन दूसरे सेशन में एटलीस्ट 20 दिन का गैप होना चाहिए, तो आप अगर उस जगह पे बाल आ जाते हैं तो आपने क्या करना है, आप उस पे वैक्सिंग करवा सकते हो, आप उस जगह पे आप शेव कर सकते हो एक एक दो दो बालों को रिमूव करने के लिए, पर ध्यान रहे कि 12 दिन का गैप, 10 से 12 दिन का गैप होना जरूरी है। कम से कम 2 दिन का अंतर भी रखें अगर आप शेव कर रहे हैं, तो इस बारे में आप अपने डॉक्टर और टेक्नीशियन से भी सलाह ले सकते हैं। सो नेक्स्ट, लेजर सेशन के बाद किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए आफ्टर लेजर? एक तो मेन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है आप अल्ट्रावायलेट रेज में एक्सपोजर से बचें, और उससे बचने के लिए आप कोशिश करें पहले तो अल्ट्रावायलेट रेज में जाए ही नहीं, इन केस अगर आप जाते हैं तो आप सनस्क्रीन का, किसी अच्छे सनस्क्रीन का प्रयोग कीजिए, या फिर आपको कोई भी, जैसे डॉक्टर के थ्रू कराते हैं तो डॉक्टर हमेशा कोई ना कोई ऑइंटमेंट जरूर देते हैं लगाने के लिए, तो आप उस ऑइंटमेंट को या ट्रीटमेंट प्रोडक्ट्स को भी जरूर इस्तेमाल करें। बाकी क्या, इसके अलावा आप क्लींजिंग और मॉइस्चराइजिंग भी कर सकते हैं, जो रेगुलर रूटीन में आप कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं वो सब यूज कर सकते हैं। तो क्या इसके कोई साइड इफेक्ट होते हैं? कभी कभी किसी को जलन हो सकती है, किसी को खुजली, इचिंग या रेडनेस या सूजन भी हो सकती है, लेकिन अगर यदि आप स्किन को बहुत अच्छे से ठंडा रखते हैं और किसी डॉक्टर के द्वारा अच्छे से ठंडा करके करवाते हैं, किसी ट्रेंड से करवाते हैं, तब ये प्रॉब्लम नहीं आती।
या अगर आती भी है तो कोई डॉक्टर कर रहा है तो वो जरूर इनके एंटी इंफ्लामेटरी आपको कुछ लोशन या कोई ऑइंटमेंट जरूर प्रोवाइड करवाएंगे। अदरवाइज बहुत रेयर केस में होता है कि स्किन पे छाले हो जाएं या स्किन डिसकलरेशन। मोस्टली जो सुना मैंने भी सुना है वो डिसकलरेशन की प्रॉब्लम ज्यादा आती है, मतलब लेजर कराने से स्किन के ऊपर काले काले धब्बे आ जाते हैं, ये चीजें ज्यादा सुनी है। तो स्किन के ऊपर जो धब्बे आते हैं वो अगर कोई अनट्रेंड करता है तब ऐसी कंडीशन में होता है, क्योंकि उनको पल्स का ध्यान नहीं होता कि किस तरह के बाल हैं और उनको कितनी पल्स देनी है, कितनी मतलब फ्रिक्वेंसी में कितनी देर तक जो है वो लेजर का शॉट देने हैं। अगर वो शॉट ज्यादा जाते हैं तो आपकी स्किन को वो बर्न जैसे टैन हो जाती है, टैन होने के बाद स्किन जलने के बाद काली हो जाती है, तो उस तरह के ब्लैक ब्लैक स्पॉट जहां जहां लेजर कराया गया हो उस तरह के ब्लैक ब्लैक स्पॉट जो है वो पड़ जाते हैं। तो जब भी ये डिसाइड कीजिए कि जब भी आप ये चीज करवा रहे हैं तो किसी अच्छे डॉक्टर से ही करवाएं। नेक्स्ट, कितना खर्चा आता है? बहुत कॉस्टली लगता है, पर ये चीजें जो हैं इसकी कॉस्ट डिपेंड करती है आपके एरिया पे, डिपेंड करती है आप कितना एरिया अपना क्लीन करवा रहे हैं और कितना टाइम उसके ऊपर लगता है। समटाइम्स कई बार होता है कि ये कई लोग इसका जो टाइम है वो डिसाइड करते हैं बालों की क्वांटिटी पे, कई लोग इसकी कॉस्ट डिसाइड करते हैं टाइम पे कि वो आधे घंटे का इतना चार्ज करेंगे, वो 5 मिनट का इतना चार्ज करेंगे। तो ये आप खुद ही कंसल्ट कर सकते हैं, जिनसे भी आप करवा रहे हैं वो खुद ही कंसल्ट करके बताएंगे चीज कि उन्होंने क्या चीज इसमें फॉलो करते हैं, क्या करते हैं। ठीक है, तो ये लेजर का थ्योरी तो अभी हमने फिनिश किया। तो लेजर में नेक्स्ट में इसका अब आपको वीडियो दिखाती हूँ कि एक्चुअल लेजर कैसे होता है, किस तरह से किया जाता है। जस्ट अ मिनट। अब देखिए आप लेजर ट्रीटमेंट करते कैसे हैं। ये देखो, सबसे पहले स्किन को आप सैनिटाइज करके क्लीन कर रहे हैं। स्किन अच्छे से क्लीन कर लिया। क्लीन करने के बाद, आपने क्लीन करने के बाद इसके ऊपर जो है वो कूलिंग जेल यूज किया गया है काफी थिक क्वांटिटी में, ताकि स्किन जो है वो ठंडी हो जाए। और अब वो अपना इक्विपमेंट रेडी कर रहे हैं, पर्ल्स रेडी कर रहे हैं, उसकी सेट कर रहे हैं कि कितनी फ्रिक्वेंसी देनी है। प्रोटेक्शन के लिए आप मास्क, क्योंकि इसकी कई बार होता है जब बाल बर्न होते हैं तो स्मेल होती है, तो मास्क यूज कर सकते हैं। आईज लेजर रेज जो है वो आईज पे इफेक्ट करती है, तो उसके लिए क्लाइंट की आईज और अपनी आईज प्रोटेक्ट करनी चाहिए।
बीच बीच में रुक रुक के कितनी फ्रिक्वेंसी पे पल्स दे रहे हैं बेस के शॉट। देखिए, और ये जो है वो ये प्रॉब है, इसको प्रॉब बोलते हैं। ये जो होल्डर हाथ में पकड़ा है ये प्रॉब है। बीच बीच में क्लाइंट से पूछ भी रहे हैं कि उनको कोई ज्यादा इफेक्ट तो नहीं हो रहा, कहीं पेन हो रहा है, कहीं जल रहा है, कुछ ऐसे चीज तो नहीं लग रही। लेजर कंप्लीट होने के बाद अभी जो इतनी हीट दी इसके ऊपर आप वापस से कूलिंग एजेंट आप कोई भी यूज करेंगे, कूलिंग जेल यूज कीजिए जिससे बहुत स्किन रिएक्ट नहीं करे एकदम और ठंडी रहे। जितनी आप कूलिंग देंगे उतना अच्छा है, कोई रिएक्शन नहीं होगा।
ठीक है, तो आपने अभी देखा इलेक्ट्रोलाइसिस, तो सॉरी लेजर। अब हम करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में अब मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो उसकी एक और मैं स्लाइड शो आपको एक बार दिखाऊंगी, प्लीज। या इलेक्ट्रोलाइसिस जो है इस मेथड ऑफ रिमूविंग इंडिविजुअल हेयर, इसमें एक एक बाल को निकालते हैं फ्रॉम द फेस और बॉडी। Today's medical electrolysis devices destroy the growth center of the hair with the chemical or heat energy। ठीक है, तो इसमें क्या होता है इलेक्ट्रोलाइसिस में, आजकल के तरह के मेडिकल डिवाइसेस हैं तो जो बालों की जड़ को ही खत्म करते हैं केमिकल वहां पे प्रोवाइड करवा के और हीट दे के। तो जो हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं इसमें वो क्या है, केमिकल प्रोवाइड होता है, और जो हम थर्मलाइसिस करते हैं, मेथड दोनों का करने का सेम है, बट एक मेथड में हीट दी जाती है बालों के रूट्स पे, जड़ पे, और एक मेथड में जो है वो केमिकल को प्रोवाइड करवाया जाता है, जो वो केमिकल जो है उस जड़ को बर्न कर देता है, तो वो है इलेक्ट्रोलाइसिस। आफ्टर अ वेरी फाइन प्रॉब इज इंसर्टेड इनटू द हेयर फॉलिकल, द हेयर इज रिमूव्ड ट्विजर। इसमें क्या होता है, बालों का बिल्कुल फाइन निडल जो है वो हेयर फॉलिकल तक डाली जाती है। जो एक पतली सी निडल जो है वो जैसे सुई होती है, सुई से बिल्कुल बारीक, आपके बाल के जितनी पतली निडल होगी उसको फॉलिकल ट्यूब तक डाला जाता है। उसके बाद उसमें जो है वो, अगर आप इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं तो उसमें केमिकल वहां फॉलिकल में फिल करते हैं, या फिर आप थर्मोलाइसिस कर रहे हैं तो उसमें हीट का एक शॉट दिया जाता है, जिससे वो स्किन जो उसकी जड़ जो है वो पूरी बर्न हो जाती है, और बर्न होने के बाद आप प्लकर से उस बाल को खींच के बाहर निकाल देते हैं। तो जो ये वाली सर्विस है वो एक एक इंडिविजुअल बाल पर की जाती है। तो most areas of the body can be treated with electrolysis including the eyebrows। ये ट्रीटमेंट आप आईब्रोज पे भी कर सकते हो, बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स पे, जैसे आईब्रोज, फेस, एब्डोमेन, थाइज, ब्रेस्ट एंड लेग्स पर। ठीक है, तो देयर आर जनरली नो परमानेंट साइड इफेक्ट, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बट समटाइम्स अ टेम्परेरी स्लाइट रेडनिंग ऑफ द स्किन में ऑकर। बट कई बार क्या होता है, ऐसे तो कोई फिक्स कोई इसके ऐसे साइड इफेक्ट नहीं देखने में आते, पर कई बार क्या होता है, जहां जहां पे ये चीज हम निडल इंसर्ट करते हैं तो उस जगह पर हल्की सी रेडनेस जरूर हो सकती है। नेक्स्ट, the process works by inserting a fine probe into the skin. It uses a short wave ratio or direct current in hair follicle to stop new hair from growing। इससे क्या होता है, जब हम निडल इंसर्ट कर रहे हैं प्रॉब के थ्रू, तो उसमें हम शॉर्ट वेव करंट, डायरेक्ट करंट भी देते हैं जो थर्मोलाइसिस है, अदरवाइज शॉर्ट वेव मेथड मतलब गैल्वेनिक यूज किया जाता है। तो गैल्वेनिक करंट, आप गैल्वेनिक मशीन यूज करते हो, वही सेम इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर गैल्वेनिक करंट पास होता है। वो करंट जो है वो स्किन को बर्न, उस हेयर फॉलिकल को बर्न करने का काम करता है। तो हेयर फॉलिकल टू स्टॉप न्यू हेयर ग्रोइंग, वो नई उसकी ग्रोथ को रोकने का काम करता है। दिस प्रोसीजर डैमेज योर हेयर फॉलिकल्स टू प्रिवेंट ग्रोथ एंड कॉज एग्जिस्टिंग हेयर टू फॉल आउट। तो उसकी ग्रोथ को ही, उसकी जड़ को खत्म कर देता है, जिससे नया बाल जो है वो वापस नहीं आता। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, 3 प्रकार का इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। पहला, जिसमें हम गैल्वेनिक करंट देते हैं विच केमिकली डिसॉल्व द फॉलिकल। इसमें क्या होता है, गैल्वेनिक करंट जब दिया जाता है तो इलेक्ट्रोलाइसिस हेयर रूट बाय फॉर्मेशन ऑफ लाई। इसमें क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम लाई भी कहते हैं। तो जो गैल्वेनिक है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोवाइड करता है, तो वो फॉलिकल के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड जाता है, उसके बाद वो वर्क करने में थोड़ा सा टाइम लेता है, फिर उसकी रूट जो है वो जलती है, और जलने के बाद आप प्लकर से बाहर निकाल सकते हो।
इसी का सेम मेथड है थर्मोलाइसिस। थर्मोलाइसिस जो है विच यूज लोकलाइज हीट, वही प्रॉप जब हम अंदर इंसर्ट करते हैं, निडल प्रॉप के थ्रू निडल इंसर्ट की जाती है, तो वो निडल जो है वो अंदर एक हीट, मतलब एक ऐसे अगर आप जैसे हम लेजर में देख रहे थे, तो लेजर में बीच बीच में स्टॉप कर करके वो रुक रुक के लाइट पड़ रही थी उसके ऊपर, सेम ऐसे ही फ्रीक्वेंसी से आप एक बटन के द्वारा उतनी हीट टाइम टू टाइम प्रोवाइड करते हैं, तो वो हीट का जो शॉट जाता है उसके थ्रू जो है रूट्स पूरी बर्न हो जाती है। और नेक्स्ट थर्ड मेथड होता है ब्लेंड मेथड। ब्लेंड मेथड के अंदर इन दोनों तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है, तो विच यूटिलाइज बोथ मेथड्स एंड वाइल some at home applicators come to provider similar result to a professional grade product, they are not as effective or permanent comes sooner। ठीक है, तो आपके तीन तरह के आपने अभी देखे। अब हम देखते हैं इससे तीन तरह के आपने मेथड इलेक्ट्रोलाइसिस के समझे कि इलेक्ट्रोलाइसिस में होता क्या है। पहला गैल्वेनिक मेथड है जिसमें हम केमिकल देते हैं, और दूसरा है थर्मोलाइसिस जिसमें हीट के थ्रू बर्न करते हैं, और तीसरा जो है वो ब्लेंड मेथड जिनमें इन दोनों विधियों का इस्तेमाल किया जाता है। अब इससे रिलेटेड हम वीडियो देखते हैं कि देखने में आप कैसा होगा, किस तरह से किया जाएगा। तो सबसे पहले आप इलेक्ट्रोलाइसिस देखिए। सबसे पहले आप इलेक्ट्रोलाइसिस देखिए। ये देखो निडल कैसे फॉलिकल के थ्रू अंदर इंसर्ट हो रही है, उसके बाद करंट पास किया जाता है बिल्कुल बालों के रूट से, और पूरा बाल जो है वो जड़ समेत बाहर, उसको पुल करके प्लकर से खींच के बाहर, तो पूरा रूट्स के साथ बाहर आएगा। और ये निडल इतनी फाइन होती है, क्योंकि अभी माइक्रोस्कोपी उससे देख रहे हैं, कैमरा से तो आपको थोड़ी मोटी लग रही है, अदरवाइज जितना पतला बाल है उतनी ही पतली ये निडल होती है कि वो बालों के फॉलिकल के अंदर चली जाए। इस वाले में जो मेथड यूज हो रहा है वो है गैल्वेनिक शॉर्ट वेव, जिसमें करंट दे रहे हैं, गैल्वेनिक करंट है। जैसे ही निडल अंदर जाएगी, जैसे ही उसको एक पुश करते हैं, एक शॉट देते हैं, तो वो क्या करता है फॉलिकल के अंदर पूरा जो केमिकल है सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो उसको फिल कर देता है फॉलिकल से, और वो फॉलिकल जो है उस फॉलिकल की आसपास की ट्यूब की दीवारें जो है वो वीक हो जाती हैं, स्किन निकल जाती है। इसलिए बाल को जब आप प्लग करते हो तो देखो पूरा व्हाइट व्हाइट बाल निकल रहा है, नीचे उसकी रूट्स पूरी व्हाइट है, तो वो पूरा अंदर से स्किन समेत बाहर आ रहा है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, पूरा जो है वो स्किन समेत, जो उसका फॉलिकल के आसपास स्किन होती है, फॉलिकल के अंदर जो स्किन की लेयर है, और इस लेयर के अंदर बाल होता है, तो ये जो है उसके अंदर पूरा का पूरा उसको पहले केमिकल से फिल कर देता है,
सोडियम हाइड्रोक्साइड से, और फिर वो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है फॉलिकल की वॉल्स को वीक करता है, जिससे आप इजीली पुल करके उसको बाहर निकाल देते हो, तो पूरी रूट, पूरी जड़ जो है इसकी फिनिश हो जाती है। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नहीं तो हमारे पास फिर टाइम नहीं बचेगा। ठीक है, ये अभी आपने इलेक्ट्रोलाइसिस देखा। एक मैं इलेक्ट्रोलाइसिस का आपको और वीडियो दिखाती हूँ, उसमें आपको जो और डाउट्स होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद लेजर आप देख चुके हैं। ये एक और इलेक्ट्रोलाइसिस है जिसमें ये इलेक्ट्रोलाइसिस चिन के ऊपर कर रहे हैं, बट किसके ऊपर, जो 75 ईयर ओल्ड लेडी है उनके, उनको कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम थी, तो उनके चिन पे बहुत सारे बाल आ गए। देखिए, मोस्ट menopause, a post menopause woman is common problem। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस डिस्ट्रॉय हेयर रूट बाय फॉर्मेशन ऑफ लाए। इसमें देखो बाय फॉर्मेशन ऑफ लाए, दैट मीन्स कि वो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो NaOH है वो उसके थ्रू, वो ये निडल्स उसके वो अंदर रूट्स तक पास करती है। उसके बाद वो रूट्स जो को लूज करता है केमिकल, देन उसके बाद आप पुशअप करके बाहर निकाल सकते हो। देखो, मोस्टली अगर किसी के वाइट हेयर हैं, क्योंकि वाइट हेयर्स जो होते हैं उनकी रूट्स बहुत स्ट्रांग होती हैं, मोटे बाल होते हैं, तो ऐसे बालों के लिए अगर आपने इस तरह के बाल निकालने हैं तो उनके लिए सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट रहता है कि आप जो है वो इलेक्ट्रोलाइसिस ही प्रेफर करें। थर्मोलाइसिस में भी ये चीज कर सकते हो, थर्मोलाइसिस सेम तरीका है, बट उसमें क्या होता है, वो उसमें कई बार स्किन जो है वो बर्न हो जाती है, क्योंकि इतना आइडिया ही नहीं होता कि उसके अंदर कितनी हीट देनी है, तो बालों की जड़ जलाने की बजाय कई बार इतनी ज्यादा हीट अंदर प्रोवाइड हो जाती है तो उससे आसपास की स्किन भी जल सकती है। तो इसलिए थर्मोलाइसिस को अवॉइड करना चाहिए, वो नहीं करवा के इलेक्ट्रोलाइसिस जो है गैल्वेनिक मेथड, ये सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट होता है। लकड़ से खींच के पूरा पूरा रूट से बाहर आ रहा है, और निडल देखो कितनी फाइन है इनकी, प्रॉब में जो निडल इंसर्ट की गई है वो कितनी फाइन थी। एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ निडल दिखाने के लिए। ये देखो, चलो ठीक है, अभी हमारा टॉपिक यहीं पे फिनिश। सारी चीजें हो गई जो हमारे सुपर फ्लेयर्स हेयर में थी। परमानेंट मेथड भी हमने कर लिए, डेपिलेशंस भी कर लिया, और हमने एपिलेशन भी कर लिया। अब आपको कोई भी क्वेरी हो, आप कोई भी चीज पूछना चाहते हो, कोई क्वेश्चंस करना चाहते हो, तो प्लीज चैट बॉक्स में दीजिए मुझे, या हैंड रेज कीजिए। मैम थर्मोलाइसिस मेथड एक बार फिर बता दीजिए। थर्मोलाइसिस बेटा अभी दोबारा का टाइम नहीं है, मेरे पास सिर्फ 1 मिनट बचा है। अगर आप क्वेरीज करना चाहते हो, फिर हम कुछ पूछना है तो कर लेंगे। मैम इलेक्ट्रोलाइसिस टाइम टेकन प्रोसीजर है। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसीजर करने से पहले स्किन पर कुछ मॉइस्चराइजर यूज किया जाता है या नहीं? नहीं, जस्ट एक सैनिटाइज करते हैं और कुछ नहीं करना होता। कोई मॉइस्चराइजर नहीं, किसी तरह की कोई एप्लीकेशन नहीं होती। और
क्योंकि लेजर से रिलेटेड जितने भी क्वेरीज थी वो क्वेरीज तो मैंने आपको प्रेजेंटेशन में ही दे दिया। आई थिंक लेजर पूरा आपको समझ में आ गया होगा, जितने भी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में और कुछ बोलिए। थर्मोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस और लेजर ट्रीटमेंट आर परमानेंट ट्रीटमेंट। जी हाँ, परमानेंट ट्रीटमेंट है। इसमें समटाइम्स क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस तो परमानेंट है, इसमें एक बार गया तो बाल दोबारा नहीं आएगा। लेजर में आ सकता है, क्योंकि कई बार क्या होता है हमें ये चीज नहीं क्लियर होती कि वो चीज परफेक्टली उसके रूट बर्न हुए या नहीं हुए। तो कई बार बाल जो है वो एनाजन स्टेज में भी होता है, जो ग्रोथ सर्कल है एनाजन, कैटाजन और टेलाजन। तो एनाजन स्टेज में भी बाल होता है। उस स्टेज में क्या होता है, बाल बिल्कुल जड़ के अंदर होता है, नया आ रहा होता है। और टेलाजन स्टेज में होता है जब हमें बाहर दिखता है, ठीक है, अपनी रूट से अलग हुआ होता है और बाल दिखता है। अगर बाल जो एनाजल स्टेज में होंगे वही बाल वापस से ग्रो करके आ जाएंगे, तो आपको उसको फिर सिटिंग्स में, कुछ कुछ सिटिंग्स में निकालना पड़ेगा। तो ये सारा प्रोसेस करते करते एटलीस्ट आपको 6 मंथ्स लग सकते हैं। तो मैम रेजर, ये क्या है, रेजर फेस पर करने से क्या कोई इफेक्ट होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं होता, कोई हार्ड ग्रोथ नहीं आती बिल्कुल बाल, क्योंकि हम फॉलिकल को तो टच कर ही नहीं रहे, हम फॉलिकल को चेंज भी नहीं कर रहे हैं। जस्ट स्किन सरफेस के ऊपर से आप बाल हटा रहे हो, और वो भी आप ओकेजनली। आप रेगुलर प्रैक्टिस में थोड़ा ना ये काम करोगे, आप ओकेजनली करोगे, तो ओकेजनली आप कर सकते हो, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और कुछ? मैं अपनी मेल आईडी आपको सेंड कर देती हूँ, मेल आईडी मांग रहे हैं बच्चे। अच्छा, ये और कुछ? चलो, योर टीचिंग इज टू गुड, थैंक यू सो मच। आपको मेरा लेक्चर बहुत अच्छा लगा, तो थैंक यू सो मच। ठीक है, चलो बच्चे, अब सेशन हम लोग खत्म करते हैं। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू। ओके पारुल मैम, फिनिश। Okay, madam. Thank you very much. बाय।